It's quite simple. Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms derive, or you can say synthesize, their food in their own body by the help of photosynthesis, by utilizing carbon dioxide and water in the presence of sunlight. And this process is possible only because these organisms have a specific uh, pigment in their body which is known as chlorophyll, because chlorophyll is very much required. And heterotrophic nutrition, in which the organisms derive food from other organisms. And you can also write further, heterotrophic nutritional modes may be saprotrophic, parasitic and holozoic. तीनों names आप at least दे सकते हो अगर आप tabular form में कर रहे हो. Autotrophic nutrition is present in all plants and organisms which have chlorophyll, like certain bacteria, algae, etc. And heterotrophic nutrition में आप examples के साथ ही mention कर सकते हो. For example, fungi depend on dead and decaying organic matter, and they are called saprotrophs. Certain plants and animals which derive food from host plant or animal, they are known as parasitic. And otherwise the all other animals which get, you can say, take in solid food, solid or liquid food, and further digest it inside their body, that is known as holozoic nutrition. So you can write differences in this form. Paragraph form में भी कर सकते हो आप अलग अलग. Otherwise better if you make 2 columns and in that pattern proper जिसमें आप difference करते हो, you need to mention in that way. Okay. Next is second question. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Yes, who knows that? Quite simple question. Ma'am. Yes. Ma'am, plants get each of the raw materials required for photosynthesis from the atmosphere. But you need to mention which are the raw materials first of all. Ma'am, sunlight, water and minerals. Raw material from soil. Carbon dioxide from air and water from soil. These two are raw materials you need to consider. Sunlight is not a raw material, you can say. It is a form of energy. It is available in the surrounding, but you no need to mention as raw material. Okay, raw materials are only two: carbon dioxide and water. Carbon dioxide plants obtain from air by the help of stomata, and water plants are getting from soil by the help of roots. So in this way you can mention किस तरह से वो उनको मिल रहा है. स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रूट्स के थ्रू सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? Ma'am, the acid in our stomach is hydrochloric acid. Yes. HCl helps in the killing of harmful microbes and in which come through food, and it also helps to provide an acidic medium for activating pepsin to digest, for the digestion of proteins. Very good. So this is the important role of acid in our stomach. First of all, HCl is a very strong acid, and actually बेटा आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो हमारा सलाइवा है, it maintains a kind of neutral medium in our mouth. 6 point actually ना, अभी आप एसिड बेसिस चैप्टर जब करोगे, हमारा नेक्स्ट टर्म में है वो चैप्टर PT2 में, इन दैट चैप्टर यू विल कम टू नो कि एसिड्स जो हैं वो उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम पीएच कहते हैं. अगर आपने कभी डेली लाइफ में, टीवी में, किसी भी जगह पे टर्म सुनाओ, पीएच जो होते हैं वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं. तो जितना कम पीएच होता है एक सॉल्यूशन का, उतना ही वो सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होता है, और जितना पीएच ज्यादा होता है उतना बेसिक होता है. तो 7 पीएच पे चीजें न्यूट्रल होती हैं. वाटर जो है उसका पीएच 7 है, और 7 से बिलो जितनी भी चीजें हैं वो एसिडिक होती हैं. जिनकी पीएच 7 से अबव होती है, दोज थिंग्स आर बेसिक इन नेचर. तो हमारे माउथ में जो पीएच रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 6.8 to 7, मतलब एक न्यूट्रल पीएच रहता है. तो सलाइवा मेंटेन्स दैट न्यूट्रल पीएच, और सलाइवा में जो एंजाइम है वो सलाइवरी अमाइलेज उसी पीएच मीडियम, हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है जिसपे वो वर्क करता है. तो सलाइवा के अंदर पीएच 6.8 to 7 तक रहता है, एंड सलाइवरी अमाइलेज इज
very much efficient to decompose or to digest starch over there. But in our stomach, the specific enzyme pepsin is present, which starts digesting protein in our stomach. So this enzyme works in acidic pH range 1.2 to 2 only, मतलब 1 और 2 pH के बीच में ही ये काम करेगा. अब फूड जो ऊपर माउथ से आ रहा है हमारा, वो pH 6.8 और 7 पे आ रहा है. तो जस्ट इमेजिन कि इतनी हायर पीएच है, मतलब न्यूट्रल की तरफ, और उसको इतनी एसिडिक पीएच चाहिए पेप्सिन को, तभी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं. अब अगर सोचो कि HCl हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होता तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का डाइजेशन पॉसिबल नहीं था. एंड फॉर दैट रीजन दिस एसिड इज secreted by our stomach walls, जिसको हम gastric glands कहते हैं. And these gastric glands release this HCl acid, which is named as hydrochloric acid. अब दो रोल है उसके आपको लिखने हैं. First one, it creates a strongly acidic medium to activate the enzyme pepsin to digest protein, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक पे स्टार्ट हो जाता है. हाफ डाइजेस्ट हो जाते हैं वो यहाँ पे, उसके बाद का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. तो स्टमक में जो HCl है, इट provides a strongly acidic medium in order to activate the enzyme pepsin in order to digest proteins. And secondly, it also helps to kill the microorganisms, harmful microbes, harmful bacteria. कोई भी foreign particle ऐसा enter हो गया food के साथ जो आपकी body के लिए harmful effect cause कर सकता है. So to kill that particular microbe, HCl is also helping out. So these two are the specific role of acid in our stomach. One more thing you need to add in this question. What is the role of acid in our stomach? Second part और एक लिख लो यहाँ पे. What is the role of bile juice in our small intestine? Because this question is not there, but it's very important, क्योंकि मैंने जो टेबल आपको बनाने को हमने दिया है बेटा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो सारे कवर कर रहा है, बट इट इज नॉट कवरिंग द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बाइल जूस. तो ये क्वेश्चन एक और या तो अलग से ही लिख लो या इसी में ऐड कर लो. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, फर्स्ट पार्ट कर दो, और सेकंड पार्ट कर दो व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. कैन एनीवन टेल रोल ऑफ बाइल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन? Hari? It emulsifies the fats. Not clear your voice, beta. Please speak up again. It breaks down the emulsified fats. Yes, very good. ब्रेक्स डाउन नहीं करता वो फैट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ब्रेक डाउन का मतलब अगर आप सिंपली ब्रेकिंग ले रहे हो, फिजिकल चेंज, तो ओके है, बट ब्रेक्स डाउन हम यहाँ पर डाइजेशन में भी यूज कर रहे हैं. तो यू सिंपली से दैट इट हेल्प्स टू convert the complex fat molecules or the large fat globules. बस बड़े globules को तोड़ रहा है, ये केमिकल चेंज नहीं ला रहा. फैट पार्टिकल्स स्टिल फैट पार्टिकल्स में ही रहते हैं, क्योंकि इमल्सिफिकेशन इज अ फिजिकल चेंज. उसको केमिकली डाइजेस्ट करने का काम पैंक्रियाटिक लाइपेज करता है, जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है. क्लियर? तो रोल ऑफ बाइल जूस इज इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, फैट के मॉलिक्यूल्स स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स की जगह छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर फर्दर इजी टू डाइजेस्ट बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज. पैंक्रियाटिक लाइपेज उसको इजीली फंक्शन आउट कर सके, उनको फर्दर केमिकली ब्रेक डाउन कर सके, इसके लिए फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स का स्मॉलर होना कंपल्सरी है. तो दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इज carried out by bile juice, which is called as emulsification of fat. आपकी बुक में ना इस पैराग्राफ में मेंशन होगा कि जैसा आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि emulsification क्या होता है. एक्चुअली चैप्टर 4 जब हम करेंगे, वो हमारा फाइनल टर्म में है चैप्टर, उसमें आपको पता लगेगा कि सोप्स जो हैं वो किस तरह से फाइनली किसी भी क्लोथ में से या आपकी स्किन में से डर्ट को कैसे रिमूव करते हैं. डर्ट ऑयली होती है नेचर में, और सोप उसको हेल्प करता है इमल्सिफाई करने में. तो इमल्शन बनाने का मतलब एक तरह का कोलॉइड फॉर्म करना होता है. आपने इमल्शन टर्म अगर याद हो, 9th में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़े. कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स जो अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होते, वो एक तरह का सस्पेंशन फॉर्म कर लेते हैं वाटर के या किसी और सॉल्वेंट के साथ. तो यहाँ पर फैट जो है वो कभी भी आपको पता है वाटर में मिसिबल नहीं होता. तो बाइल जूस क्या कर रहा है, उस फैट पार्टिकल्स को, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को थोड़े से साइज में छोटा करके
कोलॉइडल साइज पार्टिकल की रेंज में ले आता है, फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वाटर मीडियम में और एक तरह का इमल्शन बना देते हैं, और इस इमल्शन को पेप्टाइड अमाइलेज इजीली डाइजेस्ट कर पाता है. तो रोल ऑफ बाइल जूस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू emulsify large fat globules into smaller particles. Clear? इसको आप सिंपली emulsification of fat कहते हो. और दूसरा एक रोल है बाइल जूस का, it provides alkaline medium. अब स्टमक में हमारा HCl है, pH होगी 1 से 2 के बीच में. आगे आ रहे हैं जो ना पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, इन सबको चाहिए अगेन एक pH रेंज 7 के आसपास या 7 से अबव वाली. तो ये काम अब कौन करेगा? तो ये काम आपका पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों में ही कुछ ऐसे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में. बेसिक को हम एल्कलाइन टर्म भी यूज करते हैं. तो these juices, both bile juice as well as pancreatic juice, they mix up with the chyme which is coming from the stomach. chyme हम term use कर रहे हैं या chyme भी कह सकते हो, जो stomach से food आ रहा है उसके साथ ये mix हो जाते हैं juices, और उस food को मीडियम को ही चेंज कर दिया. सबसे पहले उन्होंने एल्कलाइन कर दिया, जिसमें आपके पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अच्छे से वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज डन बाय बाइल जूस हियर इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ड्यूओडेनम में हो जाता है ये काम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड converting acidic medium into, or to provide alkaline medium in order to function other digestive enzymes. बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पैंक्रियाटिक जूस में है उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए. स्टमक ने वो एल्कलाइन मीडियम नहीं रखा, वो एसिडिक मीडियम में फूड आ रहा है. तो ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको दोनों. टू प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम इन ऑर्डर टू फंक्शन अदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, एंड सेकेंडली emulsification of fats for it becomes easier for pancreatic lipase to work on emulsified fats. Otherwise fats को digest करना easy task नहीं है lipase के लिए भी. Okay, next is what is the function of digestive enzymes. तो एक collective आप कर सकते हो digestive enzymes. If you want to note down you can write. Digestive enzymes are a kind of biocatalyst. Just wait, if you want to write this spelling, I'm writing here. Enzymes are actually biocatalysts. ठीक है, this term is used for enzymes. So enzymes are biocatalysts which help to enhance or speed up, which help to speed up breaking down chemical reactions or chemical reactions of digestive system to break down larger complex nutrients into simple substances that can be absorbed by blood easily. And without these digestive enzymes, it will take years to digest just a meal. ये आपको लाइन लिखनी नहीं है, जस्ट है कि इनके बगैर वो प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है, और इसके आगे फिर आपने फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, वैसे तो आपने टेबल पूरी अब बना ली होगी, लास्ट वीक का होमवर्क था वो. ठीक है, otherwise you can mention few examples like salivary amylase digest starch, pepsin digest proteins, pancreatic lipase digest emulsified fats into fatty acids and glycerols. मतलब कुछ एक एंजाइम्स आप देके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो. तो बेसिकली जो कलेक्टिव फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, टू स्पीड अप द केमिकल प्रोसेसेस बाय विच larger complex nutrients are broken down to produce simple substances like glucose बना रहे हैं, वो अमीनो एसिड्स बना रहे हैं, फैटी एसिड्स या फिर ग्लाइसरोल्स बना रहे हैं, जो हमारे ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर ब्लड के हेल्प से पूरी बॉडी तक एसिमिलेट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. हियर यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द जेजुनम एंड इलियम, जो हमारे मेन दो पोर्शन है जहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन चल रहा है. तो द वॉल्स ऑफ
small intestine has certain finger-like projection named villi. And these villi have a very rich blood supply, and that increases the surface area of absorption of food. And in our small intestine, food is absorbed in the form of glucose, fatty acids, and amino acids, which are the simpler nutrients. It's very easy to absorb these kind of substances. Okay, so this is how our small intestine design. आपको यहाँ पे विलाई का ही explain करना है. Okay, about these questions. So next we'll move to further. मैम ये नोटबुक करने हैं. हाँ जी बेटा, अपने आप करने, या अब हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने आपको आंसर सेंड नहीं करने, यू विल हैव टू राइट ऑन योर ओन. मैम नोटबुक करने हैं. ऑब्वियसली बेटा, नोटबुक पे करने हैं. यस, इन द नोटबुक इटसेल्फ. और एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा, दृक बोलो. मैम जो लास्ट क्वेश्चन था, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन में, हाँ, इसमें जो हमें जो हमें जेजुनम पार्ट वाला जो होता है इंटेस्टाइनल जूसेस, उसमें तो कन्वर्जन ही होती है. इंटेस्टाइनल जूसेस थोड़ी कह रही हूँ मैं, तो विलाय करने को बोल रही हूँ वहां पे. आई हैव नॉट आस्क्ड टू राइट अबाउट इंटेस्टाइनल जूसेस. डिजाइन टू एब्जॉर्ब में आपको विलाय एक्सप्लेन करने. विलाय का काम एब्जॉर्ब करने का ही है सिर्फ. विलाय आर you can write that the wall of small intestine basically in jejunum and ileum part. Duodenum में नहीं होता एब्जॉर्प्शन, तो वहां पे विलाय नहीं होते. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्दर पोर्शन है, except duodenum, the walls of small intestine have various finger-like projections which are known as villi, and these villi have rich blood supply, and these villi increase the surface area of the wall of intestine to a large extent. जितनी ज्यादा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जितनी सरफेस होगी, क्योंकि हर एक विलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है और उनकी थिन वॉल्स हैं विलाई की, तो इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाए, मतलब सॉरी गैसेस एक्सचेंज तो एल्विलाई में होता है. दिस इज कि वो डिफ्यूजन के थ्रू ये सब्सटेंसेस अपने आप ब्लड में मिक्स हो जाते हैं विलाई के अंदर. तो दिस इज हाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस. और यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल. मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं डाइजेशन से, दे आर एब्जॉर्ब्ड देयर. क्लियर दृग? यू सेड कि जेजुनम में एब्जॉर्प्शन है, तब कंफ्यूजन था. जेजुनम एंड इलियम दोनों में ही होता है बेटा. जेजुनम में डाइजेशन भी चल रहा है, बट इट हैज विलाई आल्सो. क्लियर? दोनों ही जगह एब्जॉर्प्शन चल रहा है कलेक्टिव. यस. ओके. And now the first question here, ये बेटा respiration वाले questions हैं. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? एक terrestrial organism को aquatic organism के comparatively क्या advantage है oxygen obtain करने में respiration के लिए? Can anyone tell this thing? थोड़ा सा सोच के बता सकते हो? Mehak Prabhakar, beta, you can unmute yourself and tell. The amount of dissolved oxygen on terrestrial in terrestrial animals is fairly low as compared to the in aquatic animals is fairly low as compared to the amount of oxygen in the air that is used by the terrestrial animal. Therefore, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organisms. Fishes take in water through their mouth and forces it to pass the gills, where it is dissolved. Oxygen is taken up by the blood. Therefore, terrestrial animals have more advantage than the aquatic animals. Yeah, that is the main thing, because in the organisms which are terrestrial, means जो earth हम लोग जो like land region में रह रहे हैं, we have a large amount of oxygen present in our atmosphere. Because you know that 28%, 21% oxygen is present around us.
but a very small amount of oxygen and carbon dioxide gases are dissolved in water, and aquatic organisms are living inside the water, so they have only that much dissolved oxygen, and वो बहुत small proportion में है as compared to the oxygen present in air. So that is why these aquatic organism have to come up on the surface after some time in order, and they open their mouth and they take in air, और उसके बाद वो गिल्स के थ्रू अंदर चली जाती, बिकॉज और समर्स में तो ये जो प्रॉब्लम है मतलब ज्यादा हो जाती है. समर्स में क्या होता है कि वाटर के अंदर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो और डिक्रीज हो जाती है. तो इन समर्स दीज ऑर्गेनिजम्स हैव टू कम अप अगेन एंड अगेन. कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो किसी वाटर बॉडी को विंटर्स में भी समर्स में भी, तो विंटर्स में उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब टेम्परेचर कूल होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा रहती है. बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिसॉल्व्ड गैसेस एस्केप out from the water. Hence these organisms feel uncomfortable and they come up again and again in order to obtain more oxygen. ठीक है, तो this is the basic difference कि उनके पास अंदर environment वाला percentage oxygen का नहीं है. The amount of oxygen dissolved in water is very less in a water body as compared to a terrestrial organism. So that is the main difference. Excuse me, ma'am. Yes. मैम बट जैसे महक ने बोला कि फिर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग क्यों है? फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग तो लाइक इट डिपेंड्स कि आपको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है. बाकी फास्टर ब्रीदिंग उनको भी तो बार बार आना ही पड़ रहा है. 1 मिनट मुझे पैराग्राफ चेक कर लेने दो. ये कहाँ से, यहाँ पर है आपकी बुक में. दिस इज Mac, page number beta from where it is there, I know. 103. 103. Activity की next first paragraph है. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen there, the rate of breathing in. ये देखो मैं आप उल्टा बोल रही हो लावण्य, तभी मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने. रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर. उनकी फास्टर है क्योंकि उनको इतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो बार बार ब्रीदिंग करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गो देयर. ओके, क्लियर है लावण्य? आपने उल्टा. यस मैम, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, second na. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? This we have done. Otherwise तो बेटा और भी ways हैं जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, बट आपके सिलेबस में जो है वो 3 ही हैं. दैट इज 1 in muscle cell, 1 in yeast cell and 1 in mitochondria. तो वो जो एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है आप डायरेक्टली यही बना सकते हो इस क्वेश्चन में. जस्ट Ritik beta, mute yourself. Yeah, you can frame this flow chart for that question. Breakdown of glucose by various pathways. First जो step है बेटा ये सब में same है, चाहे वो कोई भी organism है, because this step is taking place in cytoplasm and this doesn't require oxygen. तो इतने जो step को हम generally anaerobic respiration भी कह देते हैं, and this step is in the absence of oxygen also taking place. So whenever glucose enters in our cells, तो cytoplasm में ही ये step हो जाता है that glucose breaks down into 3 carbon molecule and 2 ATPs are released in this process, which is actually anaerobic step. Further breakdown of pyruvic acid or pyruvate, anything you can write, takes place in 3 different ways depending on the type of organism and availability of oxygen. yeast cell में ये इस तरह से इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है. इन मसल सेल्स व्हेन वी लैक ऑक्सीजन, सिर्फ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे है. हमारी मसल सेल्स में हमेशा नहीं चल रहा होता ये ब्रेकडाउन. मसल सेल्स व्हेन यू यूज देम अ लॉट, व्हेन यू आर एक्सर्टेड आफ्टर परफॉर्मिंग अ हार्श और हार्ड एक्सरसाइज, in that case your muscle cells use this process. Otherwise normally when you are simply जॉग कर रहे हो या मतलब एक उतना हार्ड वर्क नहीं किया आपने जितना आपकी बॉडी बेयर नहीं कर पा रही, उस केस में नॉर्मल यही प्रोसेस चलता है चाहे वो आपकी मसल सेल्स भी हैं. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया it takes place in this format. So you need to mention only this topic, this flow chart. और यहाँ पे आप थर्ड वाले में एनर्जी के ब्रैकेट में
36 ATP मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ 36 ATPs है, यहाँ 2 ATPs. इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी ATPs रिलीज नहीं होते, इन डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जीज आर रिलीज. तो ATP का फॉर्मेशन अगर पूछा जाता है तो एनारोबिक प्रोसेस में सिर्फ 2 ATPs ही बनेंगे जो इस स्टेप से बन गए, और 36 ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में. तो टोटल एरोबिक का रिजल्ट 38 हो गया, एनारोबिक का 2 है. क्लियर? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट यू कैन मेंशन हियर, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है तो थोड़ा नेक्स्ट नॉलेज के लिए आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू बाय द ब्लड, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, एंड साथ में ब्लड में से फिर वो डिफ्यूज आउट होते हैं. बट एक्चुअली आप सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन, अभी ना हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं किया, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही है. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू नो दैट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे लंग्स में आता है, और कैसे हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स तक पहुंचता है. तो दिस इज ऑल कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है एल्वियोलाई के थ्रू, एंड ब्लड टेक्स अप दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू वेरियस सेल्स, एंड इनसाइड दीज सेल्स as the concentration of oxygen is lesser, hence this oxygen from oxyhemoglobin, आपको ये भी यहाँ पे लिखना है, in our blood there is a pigment called hemoglobin which combines with oxygen to form oxyhemoglobin, and in our cells where oxygen demand is larger and oxygen is used up, there this oxyhemoglobin gets broken down and releases oxygen in the cells, and from the cells carbon dioxide, where it is generated as a byproduct of respiration, get mixed with the blood by simple diffusion, and this carbon dioxide or you can say the blood mixed with carbon dioxide is taken back up to the lungs for purification. So in this way you can write it, paragraph form में लिख सकते हो, book में भी given है वो. How are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? वहां हमने इंटेस्टाइन की डिजाइनिंग देखी विलाई के फॉर्म में. लंग्स, Excuse me, ma'am. यस ग्रेट. मैम इन द पैराग्राफ जो लास्ट है इसमें कुछ और भी मेंशन है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water and is transported in dissolved form of blood. हाँ जी, ये भी लाइन. ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी लिखना हमने. कंपैरेटिवली ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है, मतलब वो तो दोनों को रिलेट किया हुआ है कि हर एक गैस की ना एक डेफिनेट अमाउंट में सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर. ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिसॉल्व होती है और ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है, तो वो ब्लड के प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी सेल्स, क्योंकि सेल से बाहर तो निकालना ही है. इट इज टेकन अप, फर्स्टली हार्ट तक आता है इम्प्योर ब्लड, उसके बाद लंग में चला जाता है, लंग्स फिर उसको प्योरीफाई कर देते हैं, लंग्स उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट एल्वियोलाई के थ्रू वापस फिर एक्सहेल आउट अप कर देते हैं. ठीक है, इट्स दैट द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी. ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली CO2 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है ब्लड के अंदर, बट अभी क्योंकि आपके लंग्स के अंदर CO2 का अमाउंट उतना नहीं है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, और जब आप सेल्स तक पहुंच रहा है ब्लड, तो सेल्स में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन चल रहा है, तो वहां से ऑक्सीजन ब्लड में से सेल्स के अंदर चली जाती है, और सेल के अंदर जहाँ CO2 ज्यादा है वहां से वो डिसॉल्व, क्योंकि ये डिफ्यूजन का मतलब क्या है, चीजों का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना. तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, तो CO2 ब्लड में आ जाएगी और ऑक्सीजन सेल्स में चली जाएगी. तो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज टेकिंग प्लेस. लंग्स कैसे डिजाइन होते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स में मैक्सिमाइज करने के लिए? एल्वियोलाई. एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, दीज आर दी स्मॉल एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स which maximize the surface area for the exchange of gases, and these alveoli are filled with rich blood supply. They have a rich supply of blood vessels, and the walls of these alveoli is very thin. जहाँ thinner walls होंगी ना वहीं पे diffusion easily होगा, and these gases like oxygen and carbon dioxide, they diffuse in and out inside our alveoli. ठीक है,
So exchange of gases take place in alveoli actually, which is the smallest unit of respiration, and villi is the smallest unit of absorption of food. Can you do these questions? ये 4 ये हो गए बेटा 4 डाइजेशन के, और पहले वाले 4 कर लिए थे आपने? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था करने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन, दैट इज ओके। अगर नहीं किए तो फिर कर लेना, पूरा वीक है आपके पास। अब इस वीक में आपकी बायोकेमिस्ट्री कोई क्लास नहीं होनी है बिकॉज आई एम ऑन लीव ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो नेक्स्ट वीक आई विल बी गेटिंग मोर एक्स्ट्रा पीरियड, 1 or 2 आई थिंक। एक तो Ma'am. हाँ जी, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क।